properties of real numbers. Now today we study what are the properties of real numbers. There are different properties of real numbers: addition properties, multiplication properties, distributive property, properties of equality, and properties of inequality. Now we study briefly one by one. What are addition properties? These are the properties of real numbers. So which number should be taken? Real numbers. And properties of addition. So which sign is used for addition? Plus. Properties of real numbers for addition. First one is Collier property. Collier, the word Collier comes from the word close. Means real numbers are closed under addition. The sum of two real number is a real number. Means for all a, b belongs to real number, a plus b also belongs to real number. हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर हैं a और b, अगर हम उन्हें सम करते हैं तो उनका सम वापस रियल नंबर ही बनता है. This is called Collier property. For example, if we have two real numbers 9 and 3 and we sum these numbers, 9 plus 3 becomes 12, which is again a real number. This is called Collier property. Next one is associative property. In Collier property, how many numbers are taken? Two numbers. Now, in associative property, three numbers should be taken and add these numbers to prove associative property. For example, we have three real numbers a, b, c. For all a, b, c belongs to real numbers. The associative property is a plus b plus c is equals to a plus b plus c. अब दोनों साइड पे सेम नंबर यूज होंगे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? ब्रैकेट के ऑर्डर का. लेफ्ट साइड पे ए और बी ब्रैकेट के अंदर है और राइट साइड पे बी और सी ब्रैकेट के अंदर है. मींस अगर हम फर्स्ट और सेकंड नंबर को पहले ऐड करें और उसके आंसर में थर्ड नंबर को ऐड करें, या फिर हम सेकंड और थर्ड नंबर को पहले ऐड करके उसके आंसर में फर्स्ट नंबर को ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, तीन नंबर्स हमारे पास गिवन है, a is 2, b is 3, c is 4. अब हम इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर प्रूव करें तो पहले हम लेफ्ट साइड पे क्या किया, ब्रैकेट के अंदर 2 plus 3 है तो क्या करेंगे, पहले 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 और फिर उसके आंसर में 4 थर्ड नंबर ऐड करेंगे जो क्या बन जाएगा 9. और राइट साइड पे पहले हम सेकंड और थर्ड नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे 3 plus 4 और फिर उसके आंसर में 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 plus 2 9. तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया सेम वही आंसर राइट हैंड साइड का आया. तो इट मींस ब्रैकेट्स के ऑर्डर से उस पे नंबर्स की एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. In commutative property, two numbers are taken. For all a, b belongs to real numbers. A plus b is equal to b plus a. Means order is not important in addition. We add first plus second or second plus first. Answer is same. For example, दो नंबर है हमारे पास कोई भी, a is 2 and b is 5. First we add 2 plus 5 which is 7 and then we add 5 plus 2 which is also 7. So in commutative property only order is changed and order is not important in addition. Means a plus b is equal to b plus a. Next one is additive identity. Additive identity means which number is added to all the numbers which does not affect on it. Now in real numbers, which number is added to each number which does not affect the other number? 0. Means if we add 0 to any number, it remains same. 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वो उसमें कोई फर्क नहीं डालता है. तो क्या होती है ये? 0 is called additive identity. Additive identity में एडिशन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड किया जाए तो नंबर्स पे कोई फर्क नहीं डालता. तो कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड कर दिया जाए तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता? दैट इज 0. फॉर एनी रियल नंबर्स a, there exists 0 belongs to a such that a plus 0, 0 plus a equals to a. For example, we have a number 2. 2 plus 0, 0 plus 2, answer is 2.
3 plus 0 3, 4 plus 0 4, 100 plus 0 100 एंड अप टू सो ऑन। 0 किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन की वो आइडेंटिटी है कि वो किसी भी नंबर में ऐड होकर उस पर कोई फर्क नहीं डालता है। नेक्स्ट वन इज एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। अब एडिशन का इनवर्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। the inverse of addition is subtraction and the inverse of subtraction is addition. तो additive inverse का मतलब क्या है? For any real number a, there exists a number minus a such that a plus minus a is equals to 0. अब हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, उसके साथ एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट जरूर करता है कि उस नंबर को उसके साथ ऐड कर दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आंसर क्या बन जाता है? 0। वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर है 5 में जब हम प्लस करेंगे -5 तो क्या बन जाएगा? 5 प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 माइनस 5 0। या -5 पहले लिखें और 5 को उसमें ऐड कर दें तो भी क्या आंसर आएगा? 0। मीन्स a प्लस माइनस a और माइनस a प्लस a कि 5 प्लस 5 माइनस 5 और -5 प्लस 5 दोनों तरह से आंसर क्या आता है? 0, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर additive inverse of each other. The inverse of addition is subtraction and the inverse of subtraction is addition. अब हमारे पास कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 5 का एडिटिव इनवर्स -5 और -5 का एडिटिव इनवर्स +5, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इनवर्स मीन विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड कैंसिल ईच अदर। अब एडिशन में कभी भी कोई भी चीज कैंसिल होगी तो आंसर हमेशा क्या बनेगा? 0। 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0, -4 प्लस 4 0। तो एडिशन में कोई भी चीज कैंसिल हो तो 0 बनता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी दो नंबर अगर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है तो उनको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स ऐसा नंबर जो ऐड करने से किसी भी नंबर पे कोई फर्क ना पड़ता हो तो वो क्या है? 0। और एडिटिव इनवर्स मीन्स ऐसा नंबर जो ऐड करें तो आपका नंबर कैंसिल होके क्या बन जाए? 0 बन जाए। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टीज है? मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज जो एडिशन की थी सेम वही मल्टीप्लीकेशन की है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एडिशन में रियल नंबर्स को लेके उनको सम करके प्रॉपर्टी बनाई गई है, उनको ऐड किया गया है। और मल्टीप्लीकेशन में क्या किया जाएगा? नंबर्स को ऐड करने के बजाय मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब जैसे फर्स्ट हमने पढ़ी कोलेयर प्रॉपर्टी मींस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू आर। कि हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस रियल नंबर ही बनेंगे। दिस इज कॉल्ड कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट थी एसोसिएटिव। अब यहाँ भी नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटिव है। 3 नंबर लेंगे। अब एडिशन प्रॉपर्टी थी तो तीनों नंबर्स को ऐड किया। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब वही 3 नंबर लेफ्ट साइड पे होंगे, वही 3 नंबर राइट साइड पे, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ ब्रैकेट की ऑर्डर का डिफरेंस होता है कि लेफ्ट साइड पे फर्स्ट और सेकंड पहले ऐड हुए थे तो आंसर के साथ थर्ड हुआ था, तो राइट साइड पे सेकंड और थर्ड पहले ऐड हो गए, आंसर में फर्स्ट वाला ऐड किया था। अब यहाँ भी इसी तरह होगा। a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। कि हमारे पास कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं a b और c, तो हम a और b को पहले मल्टीप्लाई करें और उसके आंसर के साथ c को मल्टीप्लाई करें, या फिर b और c को पहले मल्टीप्लाई कर दें और उसके आंसर के साथ a को मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 नंबर है, a is 2 b is 4 c is 5। हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले फर्स्ट और सेकेंड, 2 4s are 8 और उसके साथ फिर थर्ड वाले को आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5s are 40। राइट साइड पे क्या है? 4 और 5 ब्रैकेट के अंदर है तो पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोथ मास रूल। तो क्या होगा? 4 5s are 20 और 20 को जब बाहर वाले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 40। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास एडिशन हो या मल्टीप्लीकेशन हो नंबर्स की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट्स के ऑर्डर को चेंज करने से नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट और सेकंड को पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर आंसर के साथ थर्ड को करें, या फर्स्ट को छोड़ के पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें और उसके आंसर के साथ फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें, दोनों आंसर्स सेम होंगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, एडिशन के बजाय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर हो उनका ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज -2 एंड बी इज 3, -2 multiplied by 3 or 3 multiplied by -2, both gives -6. It means order is not important in addition, also in multiplication. अब प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, अगर हम सब्ट्रैक्शन को देखें तो 2 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। 3 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +1। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। नेक्स्ट क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी थी, अब यहाँ पे क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब था कि ऐसा नंबर जो ऐड करने से नंबर पे कोई फर्क ना पड़ता हो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, ऐसा नंबर जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस पर कोई फर्क ना पड़ता हो। तो फिर इस अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कौन सा नंबर है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आप कहीं भी चले जाएं तो आपकी नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तानी है, आप कहीं भी चले जाएंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह से 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, उसे किसी भी नंबर पे ऐड कर देंगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इनवर्स के साथ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब वहां पे हमने क्या किया था, एडिशन का ऑपोजिट देखा था, तो एडिशन का ऑपोजिट क्या था, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है, डिवीजन। इसका मतलब है कि अब कोई भी रियल नंबर ए हो हमारे पास, तो उस रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे उसको डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसको कैंसिल कर देगा। मीन्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट 1 by a such that a multiplied by 1 by a or 1 by a multiplied by a is equals to 1, कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करके वापस क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। अब 1 डिवाइडेड बाय a को समटाइम्स a पावर -1 से भी डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a लिखा हो या a मल्टीप्लाई बाय a पावर -1 लिखा हो तो ये की बात है, a पावर -1 रिप्रेजेंट 1 डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि कोई भी रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो 5 के साथ क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5, तो न्यूमिनेटर वाला 5 डिनोमिनेटर वाले 5 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इट मीन्स 5 and 1 by 5 are multiplicative inverse of each other, बिकॉज उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो दोनों खत कैंसिल हो जाते हैं और आंसर में क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल नंबर्स। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, डिफरेंस सिर्फ क्या है, एडिशन में रियल नंबर्स को लेके ऐड किया जाएगा और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में रियल नंबर्स को ही लेके उस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, मल्टीप्लाई का उस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज होंगी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 ही नंबर लिए जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, उसमें दोनों साइन यूज होते हैं। अब अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर थे, लेकिन उसमें क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, 3 नंबर लेके उनको ऐड किया था, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। अगर मल्टीप्लिकेशन की थी तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया था, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम से, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है पार्ट्स है, उसमें मिक्स साइन यूज हो रहे हैं, कंबाइंड साइन यूज हो रहे हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है एडिशन भी है, तो इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मिक्स प्रॉपर्टी और कंबाइंड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड पे a ब्रैकेट से बाहर है, अब राइट साइड बनाने के लिए क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ भी, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई कर देंगे c के साथ भी, तो क्या बन जाएगी राइट हैंड साइड a प्लस। अब नेक्स्ट क्या है,
a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसमें एडिशन पहले यूज हुआ और मल्टीप्लीकेशन बाद में यूज हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो टाइप्स हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। मल्टीप्लीकेशन पहले आएगा और एडिशन बाद में आएगा, और एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन होगा तो फिर एडिशन का साइन पहले आएगा और मल्टीप्लीकेशन का बाद में आएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मिक्स साइन यूज होते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी होती है और एडिशन भी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? मिक्स्ड और कंबाइंड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अब ये प्रॉपर्टीज थी आपके पास रियल नंबर्स की एडिशन मल्टीप्लीकेशन के लिए और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। मींस अगर हम कोई भी दो इक्वल रियल नंबर्स लें तो उनपे हम कैसे प्रॉपर्टी बना सकते हैं। फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मींस फॉर ऑल a belongs to R, a is equals to a means every number is equal to itself only। हर नंबर सिर्फ अपने ही इक्वल होता है, किसी दूसरे नंबर के इक्वल नहीं होता। हर नंबर सिर्फ अपना ही रिफ्लेक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 is equals to 2, 3 is equals to 3, 100 is equals to 100। We can't say that 2 is equals to 3, 2 3 के इक्वल नहीं है। So this is called reflexive property, means every number is equal to itself। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि कोई भी दो रियल नंबर हो हमारे पास, फॉर ऑल a b belongs to रियल नंबर, इफ a is equal to b then this implies that b is equals to a। कि हम ऑर्डर चेंज करते हैं, पहला नंबर बाद में और दूसरा नंबर पहले लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इफ n is equals to 3 then we can write it as 3 is equals to n। अब n is equals to 3 लिखें या 3 is equals to n लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में टोटल कितने नंबर लिए जाएंगे? 3 नंबर। फॉर ऑल a b c belongs to R। अब प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर क्या यूज करेंगे? इक्वालिटी के लिए प्रूव करेंगे। तो क्या होगा? इफ a is equal to b and b is equal to c, this implies that a is equals to c। क्या है कि अगर a b के इक्वल है और फिर b अगर c के इक्वल है तो इसका मतलब है a भी c के इक्वल होगा। ऑल दीज नंबर्स आर इक्वल नंबर्स। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। पहले थी एडिटिव आइडेंटिटी कि कौन सा नंबर ऐड करने से नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ता। अब एडिटिव प्रॉपर्टी है कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दिए जाए तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ a is equals to b, अगर a b के इक्वल है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? a plus c is equals to b plus c। अगर आपके पास एक इक्वालिटी दी गई है तो उसकी दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर दिया जाए तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन ऐड सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 plus 3, 2 is equals to 2, then adding 3 on both side again it is equal, 5 is equals to 5। इक्वालिटी की दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी? जो किसी भी नंबर को चेंज नहीं करती। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी है मीन्स हम दो इक्वल नंबर लें, तो हम कोई इक्वेशन लें, इक्वेशन की दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। If a is equals to b, then this implies that a multiplied by c is equal to b multiplied by c। कि अगर a b के इक्वल था तो दोनों तरफ हमने c मल्टीप्लाई कर दिया, एक जैसा नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब कैंसिलेशन होगी, दोनों तरह से एडिशन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। अब कैंसिलेशन एडिशन की फॉर्म में भी हो सकती है और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का कन्वर्स हो जाएगा। पहले हमने क्या किया? a अगर b के इक्वल है तो दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो भी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट ये है कि हमारे पास a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, c दोनों तरफ सेम नंबर है तो इक्वालिटी की दोनों तरफ से सेम नंबर को कैंसिल कर दिया जाए
तो भी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ a plus c equals to b plus c, then this implies that a is equal to c. c को दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, अगर इक्वालिटी की दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको दोनों तरफ से उस सेम नंबर को दोनों तरफ से कैंसिल कर भी दिया जाए तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. These are the properties of equality of real numbers. ये आपके पास प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की, जब हम रियल नंबर्स को इक्वल लेके प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं. अब नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल का साइन यूज होगा. अब इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, लेस का साइन भी यूज हो सकता है, ग्रेटर का साइन भी यूज हो सकता है. अब हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टीज में क्या है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है. ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, कोई भी हमारे पास तीन नंबर, कोई भी नंबर है दो, इफ ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, अब इधर ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी. अब ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपने 7th चैप्टर में भी पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज को जब सॉल्व किया था तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज थी यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है तो या तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे या वो एक दूसरे से लेस होंगे या ग्रेटर होंगे. एट अ टाइम दो कंडीशंस कभी भी होल्ड नहीं करेंगी. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है 2 और 5, तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 2 इज लेस देन 5. हम ये नहीं लिख सकते 2 इज ग्रेटर देन 5 और 2 इज इक्वल टू 5. तो कोई भी दो रियल नंबर हो तो एट अ टाइम वो सिर्फ एक कंडीशन होल्ड करते हैं, ईदर दे आर इक्वल और लेस और ग्रेटर. नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कोई भी तीन रियल नंबर है ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर. इफ ए इज लेस देन बी and b is less than c, then this implies that a is less than c. इक्वालिटी में भी जैसे हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a is equal to b, b is equal to c, then this implies that a is equal to c. अब सेम यही चीज है लेकिन इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है तो इक्वल के बजाय इनइक्वालिटी का सिंबल यूज हो रहा है. अब इनइक्वालिटी का सिंबल लेस की फॉर्म में भी हो सकता है और ग्रेटर भी, तो इसका मतलब है a लेस देन b, b लेस देन c implies that a is less than c, और ग्रेटर होगा तो फिर a is greater than b, b is greater than c, then this implies that a is greater than c. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 2, 5 और 7. 2 is greater than 5, a is greater than b and 5 is greater than 7. 2 is less than 5 means 2 is less than 5, a is less than b and 5 is less than 7 means b is less than 7. Then this implies that 2 is less than 7. 2 is a and 7 is c means a is less than c. तो it means अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, a. a is less than b, a b से छोटा है और b c से भी छोटा है तो सबसे छोटा नंबर a और सबसे बड़ा नंबर c. तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a is less than c. कि a b से छोटा है, b c से छोटा है तो फिर ये कंपल्सरी है कि a जो है वो c से लेस होगा. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी में पढ़ी कि दो नंबर इक्वल हो तो दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी तरह से यही प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी पे भी होगी कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल a इज लेस देन b, हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. a प्लस c इज लेस देन b प्लस c. फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 5, अब दोनों तरफ हम सेम नंबर 3 ऐड कर देते हैं. 2 प्लस 3 लेस देन 5 प्लस 3. 2 प्लस 3 का आंसर क्या आएगा 5 और 5 प्लस 3 का आंसर क्या आएगा 8. इट मीन्स इट इज ट्रू 5 इज लेस देन 8. तो अगर a b से छोटा था, हमने दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दिया तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. इसी तरह अगर ग्रेटर वाला भी हम यूज करें, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 अगर 2 से ग्रेटर है, हम दोनों तरफ सेम नंबर 3 ऐड कर देते हैं तो 5 प्लस 3 8 और 2 प्लस 3 5, तो 8 क्या हो जाएगा 5 से ग्रेटर हो जाएगा. तो इनइक्वालिटी में प्रॉपर्टीज दो तरह से होल्ड कर सकती हैं, लेस के लिए भी और ग्रेटर के लिए भी. अब एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आएगी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या किया, सेम नंबर दोनों तरफ ऐड किया. इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में इक्वल के साथ, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में लेस देन के साथ या ग्रेटर देन के साथ. अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर इनइक्वालिटी की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें, इफ a इज लेस देन b,
then this implies that AC is less than BC. And also, if A is less than B, this implies that AC is greater than BC. Both the conditions are hold. How? Both the conditions are hold. For example, if we have A is 2, B is 5, C is 4. अब 3 नंबर है हमारे पास, A2 है, B5 है, C4 है. अब हमने पहले क्या लिया? A is less than B. A2 है, B5 है, 2 is less than 5. फिर हमने क्या किया? C जो था वो 4 था. C को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया. 2 multiplied by 4 8, 5 multiplied by 4 20. 8 is less than 20 आया हमारे पास. अब दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो यही नंबर हमने लिए A2, B5 एंड C -4. अब 2 is less than 5 ये लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दोनों तरफ हमने C को मल्टीप्लाई कर दिया. A लेस देन B हमें दिया हुआ है. हम क्या करेंगे? दोनों तरफ C को मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी के. 2 multiplied by -4, 5 multiplied by -4. तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया? -8. 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? -20. -8 इज लेस देन -20? नो. अब अगर हम नंबर लाइन को देखें तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं. 0 के बाद, 0 के आगे 1 होता है, 1 से आगे 2 होता है, 2 से आगे 3 होता है. तो आगे आगे जाते जाए नंबर इंक्रीज होते जाते हैं. लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो 0 के साथ सबसे पहले क्या आता है? -1. -1 से पीछे -2 है, -2 से पीछे -3 है. तो पीछे जाते जाएंगे तो नंबर क्या होते हैं? छोटे होते जाते हैं. आगे जाएं तो बड़े होते हैं, पीछे जाएं तो छोटे होते हैं. इसका मतलब है कि -1 से पीछे -2 होता है. तो -1 बड़ा है -2 से. इसका मतलब है कि -8 से पीछे जाएंगे तो कहीं पे -20 आएगा. -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8. अब जाते जाएंगे तो पीछे कहीं आगे जाके 20 आएगा. तो इसका मतलब है पीछे जाएंगे तो -8 इज not less than -20. -8 is greater than -20. बिकॉज अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को देखें तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और नेगेटिव को देखें तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में. इसका मतलब है कि अगर नंबर पॉजिटिव हो तो वो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इंक्रीज होंगे, और अगर नेगेटिव हो तो वो पीछे आए तो डिक्रीज होते जाएंगे. तो इसी तरह यही है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? अगर आपके पास इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के साथ आप ग्रेटर देन 0 नंबर, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन किसी दूसरे साइन पे कोई फर्क नहीं डालता है. लेकिन अगर आप इनइक्वालिटी की दोनों तरफ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर क्या कर देता है? डायरेक्शन को ऑपोजिट बना देता है. पॉजिटिव चेंज हो जाएगा नेगेटिव में और नेगेटिव चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में. तो जैसे ही साइन चेंज हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. तो जैसे ही साइन चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी, तो इनइक्वालिटी का सिंबल भी चेंज हो जाएगा. तो अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में दो कंडीशन है आपके पास कि अगर A B से लेस है, दोनों तरफ हम सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर हमारे पास A B से लेस है और हम एक सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो 0 से लेस है, जो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है. 5 मल्टीप्लाई बाय -5 करें तो -25 हो जाता है. इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर से हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है. तो जब भी हम इनइक्वालिटी की दोनों तरफ नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगी. अगर पहले इनइक्वालिटी लेस में थी तो चेंज होके ग्रेटर बन जाएगी, और अगर पहले से ग्रेटर में थी तो चेंज होके लेस बन जाएगी. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी. अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम ये एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को देखते हैं. अब पहले आपके पास एग्जाम्पल्स मेंशन है. एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है? नेम द प्रॉपर्टीज. अब सिर्फ आपने क्या करना है? प्रॉपर्टीज का नाम जो है वो मेंशन करना है. अब यही सारी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनको देखते हुए हम मेंशन करेंगे. पहले है, सबसे पहला क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5 इक्वल्स टू 1. मीन्स एक 5 न्यूमिनेटर में था, दूसरा 5 डिनोमिनेटर में था, दोनों मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गए. तो क्या हुआ? ये जब चीजें कैंसिल हो जाती हैं तो वो एक दूसरे का ऑपोजिट होती है. मीन्स दिस इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. सेकेंड क्वेश्चन है 19 प्लस 6 बिलोंग्स टू R. मीन्स 19 एक रियल नंबर है, 6 एक रियल नंबर है, दोनों को ऐड किया तो दोबारा रियल नंबर बना. तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि आप दो नंबर्स को ऐड करें तो वापस आंसर रियल नंबर ही आए. दिस इज कॉल्ड कोलेयर प्रॉपर्टी. ऐड किया तो कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. नेक्स्ट है 2x इज इक्वल्स टू 8 देन x इज इक्वल्स टू 4.
अब यहाँ पे क्या किया गया है, x इज इक्वल्स टू 4 है, 2x इज इक्वल्स टू 8 है, 2 मल्टीप्लाई बाय x और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया गया है, तो x 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया तो क्या रह गया, लेफ्ट साइड पे x और राइट साइड पे 4। सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो कैंसिल हो गया। सो दिस इज cancellation property with respect to multiplication. Next is if 7 is equals to n, then n is equals to 7. अब ये क्या है हमारे पास कि अगर a b के इक्वल है तो वो क्या इम्प्लाइज करता है, b a के इक्वल होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब दो नंबर इक्वल लिए हुए हैं, तो इक्वल लिए हुए हैं इसका मतलब है कि इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पे हम जाएंगे, और इक्वालिटी में ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इफ a इज इक्वल्स टू b देन b इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट है 2 + 6 + 3 इज इक्वल्स टू 2 + 6 + 3। कौन सी प्रॉपर्टी है, सारे नंबर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, ऑपरेशन भी सेम है, सिर्फ ब्रैकेट्स के ऑर्डर का फर्क है। तो जब तीन नंबर सेम यूज हो दोनों साइड पे, सिर्फ ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब साइन एडिशन का यूज हो रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है √7 + 0 इज इक्वल्स टू √7, मीन्स √7 में 0 ऐड किया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो वैल्यू किसी चीज पे कोई फर्क नहीं डालती, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 1/5 is equals to 1/5. Every number is reflection of itself. This is called reflexive property of equality. 4 + -4 = 0. अब क्या हुआ यहाँ पे, एक +4 था एक -4 था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और 0 बन गया। अब कैंसिल होके जब 0 बने तो हमेशा एडिशन में होता है, 1 बने तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है। अब दोनों चीजें कैंसिल हुई तो 0 बना, ऐड होके कैंसिल हुई, इट मींस दीज आर एडिटिव इनवर्स। क्या है ये, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। और लास्ट वन है 2x + 5x इज इक्वल्स टू 2 + 5 × x। कितने साइन, कितने ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, एडिशन भी यूज हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा है। अब जिस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कंबाइंड साइन यूज हो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए और इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ आपको यही प्रॉपर्टीज यूज करके उनको मेंशन करना है और कोई लेंथी सोल्यूशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस मेंशन है, आपने उनकी प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है। पहले क्या है, 1 + 4 + 3 = 1 + 4 + 3। जो नंबर लेफ्ट साइड पे है वही नंबर राइट साइड पे है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, ब्रैकेट्स के ऑर्डर का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तीन नंबर सेम साइन के साथ जब यूज होगी दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिंबल यूज हो रहा है एडिशन का तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 5 × a + b इज इक्वल्स टू 5a + 5b। बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर यूज्ड, सो दिस इज distributive property. The property in which mixed signs are used is called distributive property. A + 0 = 0 + a = a. a में 0 ऐड हुआ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस a बन गया, so this is called additive property identity. Additive identity. 0 ऐड होगा, नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और दोनों तरफ कोई सेम नंबर ऐड करेंगे तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, 0 ऐड होगा, नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया जाएगा तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है 5 × 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5 × 5 इज इक्वल्स टू 1। मीन्स न्यूमिनेटर वाला 5 ने डिनोमिनेटर वाले 5 को कैंसिल कर दिया और आंसर में क्या बन गया, 1। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब चीजें कैंसिल होती हैं तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, सो दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 + 6 + 4 इज इक्वल्स टू 2 + 6 + 4। अब यहाँ 2 प्लस के बाद आगे डैश डली हुई है, अब आपने उसको फेल करना है, मिसिंग नंबर को। अब सेम ऑपरेशन यूज हो रहा है, कोई डिफरेंट ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, तीन नंबर्स के साथ सेम ऑपरेशन यूज हो तो वो
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिर्फ ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज होता है। राइट साइड पे 2 और 6 ब्रैकेट के अंदर है, 4 ब्रैकेट से बाहर है, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 6 और 4 ब्रैकेट के अंदर होंगे और 2 ब्रैकेट से बाहर होगा। सेकेंड पार्ट में क्या किया हुआ है, 7 + 4 + 2 = 13। सो 7 + 4 + 2, पहले 4 और 2 को ऐड किया, फिर 7 को ऐड किया। अब 7 और 4 को ऐड करके 2 को ऐड करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 पहले 4 और 2 को ऐड करके आंसर आया 6 में 7 ऐड किया तो 13। अब 7 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11, और 11 में 2 ऐड करेंगे तो अगेन क्या बनेगा 13। आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ही आएगा। 9 × 3 × 4 = 108। मतलब ऑपरेशन सेम है। अब आगे सिर्फ क्या है, पहले 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर थे, 9 ब्रैकेट से बाहर था। दूसरी तरफ कब क्या है, 9 और 3 ब्रैकेट के अंदर है, 4 ब्रैकेट से बाहर है। इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आता है सेम वही आंसर राइट हैंड साइड का आता है। सो इफ द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 108, सो द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड इज आल्सो 108। 5 × 8 × 9 = 5 × डैश × 9। अब डैश में क्या आएगा आपके पास, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि सारा सेम ऑपरेशन यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, कहीं एडिशन यूज नहीं हुई है। इसका मतलब है जो नंबर लेफ्ट साइड पे है सेम वही नंबर राइट साइड में, सिर्फ ब्रैकेट के ऑर्डर के साथ। अब 5 के बाद 8 है तो नेक्स्ट साइड पे भी क्या आएगा, 5 के बाद 8 आएगा, तो 5 × 8 × 9। नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। 8 × 6 × 7 = अब सारा सेम ऑपरेशन अगेन यूज हो रहा है। सेम ऑपरेशन यूज हो तो उसमें सिर्फ ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज होता है। यहाँ ब्रैकेट सेकंड और थर्ड नंबर पे है तो दूसरी साइड पर ब्रैकेट कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड पे। तो ऑप्शन डी 8 × 6 × 7। सेकंड पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, 3 नंबर्स ऐड होंगे दोनों तरफ। एक तरफ ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड पे हुई तो दूसरी तरफ ब्रैकेट सेकंड और थर्ड पे होगी और सारा एडिशन का साइन यूज होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें सारे सेम नंबर है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, 3, 2 और 4। दूसरी साइड पे भी 3, 2 और 4 है, सिर्फ ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज है। लेफ्ट साइड पे सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट है और राइट साइड पे फर्स्ट और सेकंड पे है। अब सेम यही चीज नेक्स्ट में है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही इलस्ट्रेट करनी है फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो अब क्या होगा, सिंबल यूज होगा थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन का। एक तरफ फर्स्ट और सेकंड पे ब्रैकेट हुई तो दूसरी तरफ सेकंड और थर्ड पे होगी। तो ऑप्शन सी है जिसमें 4, 3 और 6 लेफ्ट साइड पे भी है, 4, 3 और 6 राइट साइड पे भी है। लेफ्ट साइड पे 3 और 6 पे ब्रैकेट है और राइट साइड पे 4 और 3 पे ब्रैकेट है। मीन सिर्फ ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो 4 × 3 × 6 दूसरी साइड पे ये नंबर यूज नहीं हो रहे, तो सारा सेम ऑपरेशन हो, 3 नंबर्स हो, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, वो सेम नंबर्स लेती है। लेफ्ट साइड पे जो नंबर होंगे सेम वही नंबर राइट साइड पे यूज होंगे, सिर्फ ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे पहले 2 नंबर पे ब्रैकेट थी तो राइट साइड पे सेकंड और थर्ड पे आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे सेकंड और थर्ड पे थी तो राइट साइड पे फर्स्ट और सेकंड पे आ जाएगी, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसमें मिक्स साइन यूज होते हैं। उसमें भी 3 ही नंबर होते हैं लेकिन उसमें क्या होते हैं, मिक्स साइन यूज होते हैं। उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों होते हैं। तो अगर मिक्स साइन हुए 3 नंबर्स के साथ तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। सेम साइन हुआ तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। थ्रू आउट प्लस का साइन हुआ तो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, थ्रू आउट मल्टीप्लाई हुआ तो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हुए, पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, और पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है, डू दिस विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना, आपने इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बोर्ड-मास रूल। कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड-मास रूल के अकॉर्डिंग, कि पहले हमेशा किस चीज को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स ना हो तो डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स तो है नहीं तो पहले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 39 मल्टीप्लाई बाय 63 है, फिर आगे प्लस है, फिर 39 मल्टीप्लाई बाय 37 है। तो पहले क्या करेंगे, जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनके मिड में प्लस हुआ तो उनको ऐड कर देंगे, माइनस हुआ तो उनको मल्टीप्लाई। अब जैसे थर्ड वन में है 50 मल्टीप्लाई बाय 161, फिर माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 81, तो हम क्या करेंगे, पहले 50 मल्टीप्लाई बाय 161 करेंगे, फिर
उसका जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। नेक्स्ट माइनस के बाद 50 मल्टीप्लाई बाय 81 करेंगे, दोनों आंसर लिखेंगे और फिर दोनों क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह रीड करना है, सारे एमसीक्यूज को हाईलाइट करना है, प्रॉपर्टीज अच्छी तरह समझ के एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 की प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज नंबर 2.2 को नीट नोटबुक पे